Hello students. Today we will discuss in this class exercise 2B of class 8th ICSC board Selena. In our previous class we already discussed exercise 2A and basic concept of exponent chapter. For that videos you can check in playlist, there it is given. If you want to watch you can watch from there, so you go there for that. In this class we will first start with multiple choice type question. So here in first question what given? If x equals to 3 to the power m and y equals to x is equals to 3 to the power m, 3 to the power m and y is equals to 3 to the power m plus 2, then find x by y. So how we can find this? So for finding this what we will use? We use here quotient law because this is given in division form. So according to quotient law we know na, since x to the power m upon x to the power n, if base is same power different and given in division form, then this can be written as m minus n, like this formula, x to the power m minus n. So same we use here. First of all we put the value. X is given what? Here x given 3 to the power n, y given 3 to the power m plus, sorry, here x to the power 3m not n, this is m given, and here m plus 2. So when you send this in numerator, then again this will go in subtraction form. So what we can write? 3 to the power m minus m plus 2. So this we can write as 3 to the power m minus 2. Cancel, so here left 3 to the power minus 2. सो पावर यहाँ पे कैसा है? निगेटिव है. इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए फिर से हम इसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे. सो दिस वी कैन राइट एज 3 टू द पावर 2 एंड व्हेन यू सॉल्व 3 3 ज़ 9. सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. इट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. दिस इज द फाइनल आंसर. करेक्ट. Now we will try to solve second question. In second question given here that x to the power minus 2 upon 3y to the power minus 1 and whole power given here minus 1. So how we can solve this? What is the value of this? So for solving this what we can write here? This power minus 1 is power for all the terms inside the bracket. So first of all we try to write this power. We can write minus 1 divided by 3 का भी पावर माइनस 1 होगा, इस y टू द पावर माइनस 1 का भी पावर माइनस 1 होगा. तो 3 टू द पावर माइनस 1. यहाँ 3y क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है. अगर इनके बीच कोई साइन नहीं है इट मीन्स 3y में 3y टू द पावर माइनस 1 मीन्स 3 इंटू वाई टू द पावर माइनस 1. तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे डॉट से या मल्टीप्लिकेशन साइन देकर. तो यहाँ पे हो जाएगा y टू द पावर माइनस 1 एंड दिस होल पावर माइनस 1. वी कैन राइट लाइक दिस. अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? यहाँ पे x टू द पावर माइनस 2 होल पावर माइनस 1 है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई पावर लॉ, as we know. Okay, so as we know from power law we can write x to the power minus 2 into minus 1 divided by 3 to the power minus 1 को ऐसे लिख सकते हैं 3 to the power minus 1 into y to the power, यहाँ पे भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर लॉ से. तो इस तरीके से लिख सकते हैं. ऐसा क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज वी नो दिस फॉर्मूला दैट इफ a to the power m whole power n is equals to what? A to the power m into n. This equals to a to the power m into n. So this is power law. Now see after this line. Here x to the power minus 2 into minus 1. Minus into minus क्या होगा हमारा? प्लस हो जाएगा. And 2 into 1 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 टू द पावर माइनस 1 है, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं.
इंटू वाई टू द पावर -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा. सो वी कैन राइट लाइक दिस. अब यहाँ पे क्या है, x टू द पावर +2, तो इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं. एंड यहाँ पे 3 टू द पावर -1 को ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 3 टू द पावर +1 हो जाएगा. और यहाँ पे y टू द पावर +1. अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 1 का मतलब 3, सो वी कैन राइट दिस एज 3 इंटू एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई y टू द पावर 1 मीन्स y. तो अब इसमें कोई ऑप्शन है, सो ऑप्शन 1 से ये मैच कर रहा है, मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट. दिस इज द फाइनल आंसर. ऑप्शन A is the answer. So option A is correct. Now come in the third question. In this question given here, 4 by 5 to the power -3 into 4 by 5 to the power -5 equals to 4 by 5 to the power 3x minus 2. So we can see now in this side we can use here product law. We know since a to the power m into a to the power n is equals to what, a to the power m plus n. This is product law. If bases are same, so see bases are same, 4 by 5 4 by 5 and power is different, so power will be added here. यहाँ पे power add हो जाएगा, तो इस लाइन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, therefore 4 by 5 to the power -3 plus -5 and this side 4 by 5 3x minus 2. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पावर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 प्लस इंटू -5 इज इक्वल्स टू 4 by 5 3x minus 2. अब यहाँ पे 4 by 5 -8 is equals to 4 by 5 3x minus 2. Now bases are same, 4 by 5 4 by 5, तो पावर भी क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं, मैं इसे इरेज कर रही हूँ, आगे का फिर यहाँ से मैं लिख रही हूँ. सो दिस वी कैन राइट एज, सो आफ्टर दिस 4 by 5, इस लाइन के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस bases are same, so power must be equal. Then we can write -8 is equals to 3x minus 2. अब इस लाइन को मैं इरेज कर रही हूँ, so -8 ये -2 इधर भेज सकते हैं, तो ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 - 8 इज इक्वल्स टू 3. 2 - 8 क्या हो जाएगा हमारा, -6, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, लेकिन साइन हम लोग बड़े वाले नंबर का देंगे, तो दैट्स वाई आई कीप हियर माइनस साइन, इक्वल्स टू 3x. Then we can write x is equals to -6 divided by 3. So 3 2s are, so -2. Is there any option -2? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन C is correct. Option C. So this is the final answer. Now we will solve question number 4. See, in this question, here given m by n x minus 1 power and n by m x minus 5. तो अगर हम लोग दोनों साइड बेस को सेम कर दें, तो अगर बेस सेम हो जाएगा तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वलाइज कर सकते हैं, लेकिन इधर है बेस m by n, इधर है n by m, तो या तो इसको चेंज कर दें या तो इसको चेंज कर दें. तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर का अगर हम लोग सेम रहने दें पावर, और इधर के टर्म्स को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में अगर ले जाएं, इंटरचेंज करें, तो अगर ये m by n हो जाए
तो इसका पावर भी क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में लिख के इसके आगे माइनस लगा देंगे इस तरीके से। अब हमारा बेस सेम है, तो सिंस बेसेस आर सेम देन पावर इज इक्वल, लिख सकते हैं सिंस बेसेस आर सेम सो पावर मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इनसाइड ब्रैकेट x माइनस फाइव। तो ये x माइनस वन, ये माइनस इंटू प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस फाइव हो जाएगा। इस x को इधर ले आएँ तो ये 2x हो जाएगा, इस 1 को इधर ले जाएं तो 5 प्लस 1 दैट इज़ 6 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 6। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6/2। सो 2 3 ज़ा 6, 3 इज़ द फाइनल आंसर। इज़ देयर एनी ऑप्शन 3? तो ऑप्शन ए जो है वो 3 है। मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन A is correct. So this is the answer. So this is all about optional question. Now we will discuss the next question. There one more question 5 in optional question. Here given 1/7 whole power minus 3 into 7 to the power minus 1 into 1/49. Can we write this as 7/1? When you interchange the number, this power will become positive. Sign of power is changes. So when you write 7/1, then power become positive. 7 to the power minus 1 into 1/49. This 49 also we can write in power form. In 49, in place of 49, can we write 7 square? 7 square means 7 into 7. 7 7 is 49. Now, in next step, 7/1 power 3. Can we write this 7 to the power 3? Because 1 to the power 3 means 1. Into 7 to the power minus 1, and this 7 to the power 2 we send this in numerator. जब हम लोग इसको न्यूमरेटर में सेंड करेंगे तो इसका पावर निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है। नाउ ऑल द बेसेस आर सेम एंड दिस इज गिवन इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म। सो नाउ वी विल यूज़ हियर प्रोडक्ट लॉ, बिकॉज बेसेस आर सेम पावर डिफरेंट, तो सब ऐड हो जाएगा आपस में। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 प्लस, चूँकि ये निगेटिव पावर है तो इसके लिए हम लोग ब्रैकेट यूज़ करेंगे, प्लस माइनस 2। सो इन दिस वे वी कैन राइट नाउ 7 to the power 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 देन प्लस इंटू माइनस माइनस 2। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 7 to the power 3, यहाँ पे -1 है, ये -2 and -2 when we will add this will become 3. So 7 to the power 3 minus 3 means 0, so that is equals to 1. So 1 is the final option. Is there any option 1? Yes, option D is 1. तो यहाँ से फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन D is correct. Now we will start with these questions. So here second first. In this question given here, second first 1 to the power 8. So 1 to the power 8 means 1 को हम लोग 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 to the power 0, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वो 1 के इक्वल होता है, we know this. And 5 to the power 3 means we multiply 5 3 times, and 2 to the power 2 means we multiply 2 2 times. तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 into 1 1, 5 5 = 25, 25 5 = 125 and 2 2 = 4. अब 125 into 4 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 500 and 500 into 1 500. So 500 is the final answer for this question. Now come in the second question. In second question what given there? See, 4 to the power 7 whole power 2 into 4 to the power minus 3 whole power 4. जब भी होल पावर के फॉर्म में दिया हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पावर लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 to the power 7 into 2 into
4⁻³ इंटू 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4⁻7 2 ज़ा 14 इंटू 4⁻4 3 ज़ा -12। अब यहाँ पे बेस सेम है 4 4, तो पावर क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 4⁻14 ±12। तो जब इसको ऐड करेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, एंड 14 -12 कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 14⁻14 -12 मीन्स दैट इज़ नॉट 14, यहाँ पे 4 है ना, सो 4 कितना आ जाएगा हमारा, 14 -12 मीन्स 2। 4⁻2 means final answer is 4 4s are 16. So 16 is the final answer. In third question given here that 2⁻⁻9 divided by 2⁻⁻11 whole power 3. तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻⁻9 divided by 2⁻⁻11 whole power 3. This we can write like this. Now after this can we write this as now this comes in which form, यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, ये डिवीज़न फॉर्म में आ गया तो क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे क्योंकि बेस सेम है 2 2, तो पावर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके इससे सब्ट्रैक्ट होगा। हम लोग जानते हैं ये फार्मूला, सिंस a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n क्या होता है, a⁻m - n, so we use this formula here, so we can write this as 2⁻⁻9 -11 and whole power 3। तो ये हो जाएगा 2⁻⁻9 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 11 हो जाएगा, एंड होल पावर कितना है, 3 है। सो हेयर 2⁻⁻9 एंड 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। क्यों पॉजिटिव लिख रहे हैं, क्योंकि 11 इज़ ग्रेटर देन 9, सो दैट्स वाई वी आर गिविंग दिस साइन, पॉजिटिव साइन, एंड होल पावर 3। अब ये आ गया हमारा पावर फॉर्म में, होल पावर फॉर्म में, तो पावर लॉ अप्लाई करेंगे, a⁻m होल पावर n क्या होता है, a⁻m इंटू n, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2⁻2 इंटू 3, सो दैट इज़ 2⁻6। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, 2⁻6। Now come in this fourth number question, 2/3 whole power -4, 27/8 whole power -2। तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 whole power -4। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो 27 और 8 दिया हुआ है इसको भी पहले हम लोग पावर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो उस 27 को अगर पावर फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3⁻3, 3 9 3 27, एंड 8 को जब कन्वर्ट करेंगे तो 2⁻3 हो जाएगा, एंड होल पावर यहाँ पे -2 दिया हुआ है। तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 पावर -4 इंटू, यहाँ पे ये पावर 3⁻3 2⁻3, इसका मतलब क्या है कि ये 3/2 का होल पावर 3 है, और इस आउटसाइड ये माइनस पावर 2 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पावर 3 दोनों का पावर है, तो इसको होल पावर के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 2/3 होल पावर -4 इंटू, यहाँ पे ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 होल पावर 3 2 ज़ा 6। वी कैन राइट लाइक दिस। अब यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 3/2 है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे और ये -4 दोनों का पावर है, ये -6 दोनों का पावर है, तो उस फॉर्मेट में इसको लिखेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, फिर आफ्टर दिस इक्वल्स टू 2⁻⁻4 3⁻⁻4 इंटू
3 टू द पावर -6 2 टू द पावर -6। अब क्या करेंगे, या तो इस 3 को ऊपर ले जाते हैं या 2 को नीचे लाते हैं। तो अगर हम लोग इस 2 टू द पावर -4 को ऊपर ही रहने दें और इसको ले जाएं, क्योंकि ये सेम बेस है 2 2, तो यहाँ पे ये निगेटिव है पावर, जैसे ही ऊपर जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, +6 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -4। यहाँ पे ये निगेटिव है, जैसे ही ये नीचे आएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, +6। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर -4 +6, 6 - 4 2, एंड यहाँ पे 3 टू द पावर 6 - 4 2। तो या तो हम इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ सकते हैं, या अगर उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। So this is the final answer. This also correct, this also correct. So 4/9 is the final answer. Now we'll try to solve question number 5. In question number 5, given here 56/28 whole power 0 divided by 2/5 whole power 3 into 16/25. तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 56/28 whole power 0. This means what? अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे होल पावर 0 दिया हुआ है, तो इस पूरे का वैल्यू 1 के इक्वल होगा, डिवाइडेड बाई 2/5 होल पावर 3। देन 16/25। तो 16 को हम लोग पावर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 5 को पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 5 टू द पावर 2। अब इस डिवीज़न साइन को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 5/2 होल पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 2, 1 इंटू, अब ये पावर 3 दोनों का पावर है, तो 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 2। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ के बाद 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू दिस सेम नंबर रह जाएगा। तो यहाँ पे 5 टू द पावर 3, इसको हम लोग न्यूमरेटर में भेज देते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और ये 2 टू द पावर 4 को नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 - 4। तो उसको हम लोग और क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 3 - 2 मीन्स 1, एंड 2 टू द पावर 3 - 4 मीन्स -1। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 5 टू द पावर 1 है, इस 2 टू द पावर -1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 टू द पावर 1 का मतलब 5, 2 टू द पावर 1 का मतलब 2। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। Now I will come in question number 6. In this question given here 12 to the power -2 into 3 to the power 3। तो यहाँ 12 जो है वो पावर फॉर्म में नहीं है, इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 12 को 3 इंटू 2 टू द पावर 2 एंड होल पावर -2। 3 यहाँ पे एक ही टाइम्स है, तो इसको लिख दिया 3 टू द पावर 1। यहाँ पे 2 2 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 2। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को सेम नंबर मिलेगा 12 इंटू 3 टू द पावर 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये पावर -2 दोनों के लिए पावर है, तो हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर -2 इंटू 2 टू द पावर 2 होल पावर -2 इंटू 3 टू द पावर 3। अब ये और ये 3 और 3 बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इस तरीके से, इनटू ये होल पावर के फॉर्म में है, तो पावर लॉ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 2 इंटू -2, तो यहाँ से आ जाएगा 3 टू द पावर 3 - 2 1 इंटू 2 टू द पावर -4। इस तरीके से लिख सकते हैं। देन दिस कम्स इन 3, और ये इसको नीचे डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो वी कैन राइट लाइक दिस। सो 3 और 2 का पावर 4, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 टाइम्स इंटू 2 इंटू 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3/2
2 2s are 4 2s are 8 2s are 16. So 3/16 is the final answer. In this question given here minus 5 to the power 4 into minus 5 to the power 6. यहाँ पे ये डिवीज़न साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो माइनस 5 टू द पावर 9. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 5 टू द पावर 4 इंटू माइनस 5 टू द पावर 6 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सो माइनस 5 टू द पावर माइनस 9. अब यहाँ पे सारे बेसिस सेम हैं और मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस 5 टू द पावर 4 इंटू माइनस 5 टू द पावर 6 इंटू माइनस 5 टू द पावर 9, तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट लॉस है. तो यहाँ पे 4 प्लस 6 प्लस माइनस 9. सिंस वी नो ना a to the power m इंटू a to the power n इज इक्वल्स टू व्हाट, a to the power m प्लस n. मतलब जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है. तो कितने भी टर्म्स हो उनसे मतलब नहीं है, ये सारे पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे. तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा -5. 4 प्लस 6 10 प्लस इंटू माइनस माइनस, सो -5 टू द पावर 10 माइनस 9 1. -5 टू द पावर 1 मीन्स व्हाट, -5. So this is the final answer. Now I'll come in next question. In this question given here that -1/3 होल पावर 4, ये डिवीज़न को अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो ये पूरा का पूरा टर्म डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/-1/3 होल पावर 8 इंटू -1/3 होल पावर 5. यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/3 होल पावर 4 इंटू, जब ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, पावर यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 माइनस 8 इंटू -1/3 5. अब यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं सब बेस सेम है, -1/3 -1/3 -1/3. अगेन वी अप्लाई हियर प्रोडक्ट लॉ. तो प्रोडक्ट लॉ से सारे पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. तो -1/3 पावर हो जाएगा 4 प्लस -8 प्लस 5. विच फार्मूला वी आर यूजिंग, सिंस वी नो a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n. तो यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, -1/3 होल पावर 4 and 5 9 -8. तो यहाँ से हो जाएगा -1/3 होल पावर 1. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -1/3. So this is the final answer. In this question 9 to the power 0, in place of this we can write 1, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वो 1 के इक्वल होता है. 4 to the power -1, ये डिवीज़न को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 to the power -4. अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ये निगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव करने के लिए अगर डिनोमिनेटर में भेज दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 to the power +1 इंटू, इसको पॉजिटिव करने के लिए अब हम न्यूमरेटर में भेजेंगे तो 2 to the power 4. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 1 इंटू 2 to the power 4, 2 to the power 4 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में 4 to the power 1 मतलब 4. अब ये 2 to the power 4 है यहाँ पे और यहाँ पे ये 4 है, तो अगर इसको भी हम पावर में कन्वर्ट कर ले तो 2 to the power 2 लिख सकते हैं, 2 2 = 4. नाउ वी सेंड दिस इन न्यूमरेटर, तो ये पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से 2 to the power 4 - 2 मीन्स 2, सो 2 2 = 4 इज द फाइनल आंसर. इन दिस क्वेश्चन गिवन हियर 625 होल पावर -3/4. सबसे पहले हम लोग उसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 1 = 5, देन कैरी 1, 5 2 = 10, 2 5 5 ज़ा, देन 2 × 10 5 5 ज़ा,
5 5s then 5 on the 5. So this we can write as 625 को हम लोग लिख सकते हैं 5 into 5 into 5 into 5 and whole power minus 3/4. तो यहाँ 5 कितने टाइम्स आया है 4 टाइम्स. सो 5 to the power 4 into minus 3/4. पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा. या एक स्टेप और इसको बढ़ा लेते हैं 5 to the power 4 होल पावर minus 3/4. यहाँ से ये होल पावर फॉर्म मतलब पावर लॉ अप्लाई होगा यहाँ पे. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 to the power 4 into minus 3/4. सो ये 4 कैंसिल हो गया. यहाँ पे रह क्या जाएगा 5 to the power -3. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 to the power +3. इसको डिनोमिनेटर पे भेजेंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगा. 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 125. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर. यहाँ पे हम लोग क्या पावर लॉ अप्लाई किए. a to the power m होल पावर n इज इक्वल्स टू हम लोगों को पता है a to the power mn होता है m into n. So this law we applied here because here given in whole power form. So final answer is 125. In this question given here what 27/64 whole power -2/3. तो सबसे पहले हम लोग 27 और 64 को पावर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है 27 3 to the power 3 टाइम्स. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 to the power 3 डिवाइडेड बाई 64 को 1 2 3 4 5 6 मीन्स 2 to the power 6 एंड होल पावर -2/3. अब ये पावर -2/3 इस पावर फॉर बोथ द नंबर. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 to the power 3 होल पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 2 to the power 6 होल पावर -2/3. तो नेक्स्ट स्टेप में ये अगेन पावर लॉ से मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर. सो 3 to the power 3 into -2/3 डिवाइडेड बाई 2 to the power 6 into -2/3. सो 3 2s 6 3 से 3 कैंसिल. तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 3 to the power -2 डिवाइडेड बाई 2 to the power 2 into -2 मीन्स -4. इसको न्यूमरेटर में भेज देते हैं इसको डिनोमिनेटर में तो पावर पॉजिटिव में हो जाएगा. सो 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 3 to the power 2. अब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 2 8 2 16 एंड 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9. सो 16/9 इज़ द फाइनल आंसर. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस 32 को पावर फॉर्म में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 मीन्स 2 to the power 5 इस तरीके से एंड होल पावर -2/5. अब क्या कर सकते हैं इसमें. अब ये -2/5 जो है ये दोनों का पावर है तो इसको लग सकते हैं 1 to the power -2/5 डिवाइडेड बाई 2 to the power 5 -2/5. अब 1 का पावर कुछ भी हो तो हम इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पे ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 into -2/5. So 5 कैंसिल. सो दिस वी कैन राइट एज 1/2 to the power -2. अब इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में सेंड कर देंगे. सो 2 to the power 2. सो दैट इज़ 2 2s 4 फाइनल आंसर. In this question, first of all we convert this inside number in power form. तो यहाँ पे 125 को अगर पावर फॉर्म में लिखे तो 5 to the power 3 लिख सकते हैं होल पावर -2/3 डिवाइडेड बाई इस 8 को लिख सकते हैं 2 to the power 3 2 4 2 8 एंड होल पावर 2/3. अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा होल पावर के फॉर्म में है पावर लॉ से. तो 5 to the power हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 into -2/3 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3 into 2/3. दिस 3 कैंसिल आउट 3 कैंसिल आउट. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 to the power -2. यहाँ पे हम लोग क्या पावर लॉ अप्लाई किए सिंस वी नो a to the power m होल पावर n इज इक्वल्स टू a to the power mn. तो यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाई 2 to the power 2.
अब जब इस डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 5 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको भी हम लोग डिनोमिनेटर में भेज देंगे। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है 2 टू द पावर 2, ये भी नीचे आ जाएगा तो 5 टू द पावर 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1/100। सो 1/100 इज़ द फाइनल आंसर, 1 डिवाइडेड बाई 100। See in this question, here given 243 whole power 2 by 5 divided by 32 whole power -2 by 5। तो इस 243 को पहले हम लोग पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इस 32 को, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 243 मीन्स 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 3 होल पावर 2 बाई 5 डिवाइडेड बाई 32 मीन्स 2 टू द पावर 5 होल पावर -2 बाई 5। अब यहाँ पे भी ये होल पावर के फॉर्म में, यहाँ पे भी होल पावर के फॉर्म में। तो फ्रॉम पावर लॉ वी नो ना, a टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल्स टू व्हाट, a टू द पावर m इंटू n या mn। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 3 टू द पावर 5 इंटू 2 बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5 इंटू -2 बाई 5। इस 5 से ये 5 कैंसिल, दिस 5 कैंसिल। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -2। इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2। इस डिवीज़न को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर ले जाएंगे, तो 3 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2। सो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 9 4 ज़ा 36। So this is the final answer. See, to solve this question, what we will do? Here -3 to the power 4. So we write this as -3 into -3 into -3 into -3. Here -4√3 पावर 0। तो अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होता है वो 1 के इक्वल 0 होता है, तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 4√3 इस पूरे का पावर 0 है, मीन्स दिस ऑल्सो इक्वल्स टू 1 इंटू -2 टू द पावर 5। सो -2 को हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू इंटू -2। यहाँ पर डिवीज़न में है तो उसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। 64 को कन्वर्ट करते हैं, 64 को पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 टू दी पावर हमारा 6 आ जाएगा एंड 2 बाई 3। नाउ अब ये 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81। या इसको पावर फॉर्म में ही रहने देते हैं, बस इसके माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस। सो अगर ये इवन नंबर में पावर है तो माइनस साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4 इंटू नॉट -1 इंटू यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस, और यहाँ पे ये -1 है, तो यहाँ पे इस माइनस साइन को अगर हम लोग बाहर ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 5। इस डिवीज़न को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, या फिर इसको अभी डिवीज़न में ही रहने देते हैं, पहले इसके पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 टू द पावर 6 इंटू 2 बाई 3। सो 3 2 ज़ा 6। सो यहाँ से 3 बाई 4, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 2 टू द पावर 5। ये डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं, या इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। तो ये 2 टू द पावर 5 डिवीज़न,
यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2 टू द पावर 2 टू ज़ा 4। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ डिवीज़न था, ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हुआ तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर दिस 3 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 5। इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव है। सो 3 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 5 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे, एंड दिस वी कैन राइट एज 3 to the power 4 plus 5 to the power 2 to the power 5 minus 4 means 1. So this we can write as 3 to the power 4 को हम लोग लिख सकते हैं 81 plus 2 to the power 1 means 2. So 81 plus 2 that is equals to 83. So this is the final answer. See, in this question given here 27 to the power 2 by 3 divided by 81 by 16 whole power minus 1 by 4. So first of all we will convert this 27, 81 and 16 in power form. So how we can convert? When you convert 27 into power form, we can write 3 to the power 3. When you multiply 3 times, 3 3 is 9, 3 is 27. So this we can write in this form. Divided by 81, we can write this as 3 to the power 4, and this 16 we can write 2 to the 4 to the 8 to the 16. So 2 to the power 4 whole power minus 1 by 4. Now this we can write as 3 to the power. Now this is given in whole power form, so power multiplied. So 3 into 2 by 3 we can write like this, divided by here 3 to the power 4, 2 to the power 4. Can we write this as 3 by 2 whole power 4, because दोनों का power same है, and whole power this minus 1 by 4. तो यहाँ से ये कैंसिल, इसको लिख सकते हैं 3 to the power 2, यहाँ पे डिवाइडेड पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा होल पावर के फॉर्म में है तो, सो 3 by 2 होल पावर 4 into minus 1 by 4. So 4 4 cancel. So this we can write as 3 to the power 2 divided by 3 by 2 होल पावर माइनस 1. अब इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको अगर रिवर्स कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो दिस वी कैन राइट एज 3 to the power 2 डिवाइडेड बाई 2 by 3 power 1. Now in next step we convert this division sign into multiplication. तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो उसको लिख सकते हैं 3 by 2. सो दिस वी कैन राइट एज, यहाँ पे 3 to the power 2 है, यहाँ पे 3 to the power 3 है, तो 3 to the power 1 है, तो ये 2 plus 1 कितना हो जाएगा, 2 plus 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 to the power 2 plus 1 मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 2. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 to the power 3. 3 to the power 3 means 3 3 is 9, 3 is 27, and here 2. So 27 by 2 is the final. See how we can solve this question. First of all, we convert 8, 25, 27 into power form. So when you convert 8 into power form, 2 to the power 3 whole power 4 by 3. Then plus 25 को लिख सकते 5 to the power 2 whole power 3 by 2. And here minus 1 upon 3 to the power 3 whole power minus 2 by 3. Now this is whole power, so from power law we can write 2 to the power 3 into 4 by 3 plus 5 to the power 2 into 3 by 2 minus 1 to the power minus 2 by 3 divided by 3 to the power 3 whole power minus 2 by 3. Because we know if they are given whole power मतलब ये minus 2 by 3 1 का भी power है and 3 to the power 3 का भी है, तो we can write like this. अब यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी कैन राइट 2 to the power 4 प्लस 5 to the power 3 माइनस 1 का पावर कोई भी नंबर या डिजिट हो दैट इज इक्वल्स टू
1 डिवाइडेड बाई 3 to the power 3 into -2/3. तो ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से we can write this 2 to the power 4, 5 to the power 3 minus 1 upon 3 to the power -2. इसको और हम किस तरीके से लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल्स टू 2 to the power 4 को लिख सकते हैं 16, 5 to the power 3 को 125 एंड दिस माइनस साइन 1 अपॉन 3 to the power -2. ये 3 to the power -2 ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो वी कैन राइट दिस 16 प्लस 125 ये हो जाएगा 141 एंड -3 3 ज़ा 9. जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 को 141 से so that is equals to 132. So this is the final answer. Now see in this question here given in whole power form. So सबसे बाहर वाले ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई होगा, फिर जब अंदर वाले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे पावर मल्टीप्लाई होगा. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 64 को हम लोग पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उसको लिख सकते हैं 2 to the power 6 whole power -2 and whole power -3 divided by this we can write as, यहाँ से एक ब्रैकेट रिमूव अगर कर दें तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा क्या -8 होल पावर 2 और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 into 2. तो यहाँ से फिर सबसे पहला ब्रैकेट रिमूव करेंगे 2 to the power 6 -2 into -3 डिवाइडेड बाई, अब ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -8 into 2 into 3 into 2. So this way यहाँ से 2 to the power 6 into -2 into -3 डिवाइडेड बाई -8. -8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3, तो इसको लिख सकते हैं -2 to the power 3 एंड ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 to the power -2 into -3 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 6 6 जा 36 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे होल पावर के फॉर्म में है तो अगर हम लोग -2 का पावर लिखें तो 12 3 ज़ा 36. We can write like this. Now in next step we convert this division sign into multiplication. So can we write like this 2 to the power 36 into 1 upon -2 to the power 36. अब किसी भी नंबर का होल पावर अगर इवन नंबर हो और इनसाइड ब्रैकेट निगेटिव साइन हो तो ये निगेटिव साइन जब इसका पावर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो 36 इवन नंबर है, जब इस निगेटिव साइन को 36 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव फॉर्म. सो वी कैन राइट दिस एज 2 to the power 36 divided by 2 to the power 36. When we cancel out each other we will get 1. So or in other way you can write like this also, either you directly cancel or you send this in numerator. So we can write this as 36 minus 36. So 2 to the power 36 minus 36, that is 0. So that is equals to 1. So 1 is the final answer. Now see the third question of third. See in this question given here 2 to the power -3 minus 2 to the power -4 and here 2 to the power -3 plus 2 to the power -4. So this is given in form of a plus b into a minus b. Since we know this formula that a minus b into a plus b is equals to what? A square minus b square. We know this formula. So this identity, algebraic identity, we will use here. यहाँ पे ये 2 to the power -3 a है and 2 to the power -4 b है. तो यहाँ 2 to the power -3 in minus 2 to the power -4 into 2 to the power -3 plus 2 to the power -4. This is given in this format. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग therefore 2 to the power -3, this we can write as whole square minus 2 to the power -4 whole square, a square minus b square
इन दिस वे वी कैन राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2 पावर 2 टू द पावर माइनस 4 इंटू 2. सो दिस वी कैन राइट एज 2 टू द पावर माइनस 3 टू ज़ 6 माइनस 2 टू द पावर माइनस 4 टू ज़ 8. इस तरीके से लिख सकते हैं. अब इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में भेजना होगा. तो विद दिस वी कैन राइट एज 1 अपॉन 2 टू द पावर प्लस 6 minus 1 upon 2 to the power plus 8. Can we write like this? After this 1 upon 2 to the power 6, जब 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा हमारा. एंड जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 8 टाइम्स, देन वी विल गेट 256. अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे. सो दिस वी कैन राइट एज 64 एंड 256 एलसीएम 256. 64 से ये 4 टाइम्स में जाएगा तो 4 1 ज़ा 4 माइनस 256 1 ज़ा 256 सो 1 1 ज़ा 1. सो दिस वी कैन राइट एज 3 अपॉन 256. So this is the final answer, 3/256. Now come in the fourth number question. Now see in the fourth number question. फोर्थ फर्स्ट गिवन ईयर -5 होल पावर 0. तो हम लोगों को पता है कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1. सो दिस इज़ द आंसर. यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई करेंगे. किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो वो 1 के इक्वल होगा. 8 टू द पावर 0 मीन्स 1. देन प्लस साइन, सो यू पुट प्लस. 4 टू द पावर 0 मीन्स 1. देन 2 टू द पावर 0 मीन्स 1. तो 1 + 1 + 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 3. सो 3 इज़ द फाइनल आंसर. यहाँ पे 8 + 4 + 2. So 8 and 4 12 and 2 14. तो यहाँ से कितना हो जाएगा 14 टू द पावर 0. किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो दैट इज़ इक्वल्स टू 1. सो 1 इज़ द आंसर. यहाँ पे 4x टू द पावर 0. तो 4 और x के बीच में अगर कोई साइन नहीं है मतलब दैट इज़ गिवन मल्टीप्लिकेशन. 4 इंटू एक्स टू द पावर 0. दिस मीन्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स टू द पावर 0. मतलब 4 इंटू डॉट यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए. तो x टू द पावर 0 का मतलब होता है 1. तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 4. सो आंसर इज 4. नाउ विल कम इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी इन दिस क्वेश्चन गिवन हियर दैट 4x होल पावर 0. तो 4x होल पावर 0 मीन्स दिस पावर 0 इज पावर फॉर बोथ. और 4 और x आपस में मल्टीप्लिकेशन में है. तो 4x का पावर 0 होगा तो क्या होगा दैट इज़ इक्वल्स टू 1. यहाँ पे 10 टू द पावर 3. पहले पहला ब्रैकेट रिमूव करेंगे बाहर वाला. दैट इज़ 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा दैट इज़ इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 एंड होल पावर 5 इंटू 0 0. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 10 टू द पावर 3 मीन्स 1000 एंड होल पावर 0. तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो दैट इज़ इक्वल्स टू 1. सो 1 इज़ द फाइनल आंसर. यहाँ पे क्या है 7x टू द पावर 0 होल पावर 2. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है x टू द पावर 0 है मतलब 1 है. x टू द पावर 0 का मतलब मीन 7 इंटू 1 एंड होल पावर दिया हुआ है 2. सो दैट इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 7 होल पावर 2. सो दैट इज़ इक्वल्स टू 49. So 49 is the final answer. Now see the next question. See in this question given here 9 to the power 0. This we can write as 1. 9 to the power minus 1. इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव करके 9 to the power plus 1 minus 9 to the power minus 2. इसको लिख सकते हैं 1 upon 9 to the power plus 2 and here plus 9 to the power 1/2. तो इस 9 को हम लोग क्या करेंगे पावर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे. So this we can write as 3 to the power 2 whole power 1/2 minus this also we convert in power form minus 1/2. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1/9 minus 9 9 ज़ा 81 प्लस यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा होल पावर के फॉर्म में. सो 3 to the power 2 इंटू 1/2 माइनस 3 to the power 2 इंटू माइनस 1/2. So 2 2 cancel. यहाँ पे भी 2 2 cancel. So this we can write as 1 plus 1/9 minus 1/81 plus 3 to the power 1
-3 टू द पावर -1। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से भी, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 + 1/9 -1/81 प्लस 3/1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, और ये 3 टू द पावर -1 को डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो इसको लिख सकते हैं -1/3 टू द पावर 1। पावर पॉजिटिव हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। अब 1, 9, 81, 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 81। सो 1 से कितने टाइम्स में जाएगा? 81 टाइम्स में, मीन्स 81। 9 से, 9 9 81, सो 9 1 9। देन माइनस साइन है, 81 1 जा, सो 1 1 जा। देन 1 81 जा, सो 81 3 जा 243, और लास्ट में यहाँ पे 3, तो यहाँ पे वी कैन राइट दिस एज 3 से, तो दैट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 327, 27 3 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 27। So we can write like this. So 81 + 9 - 1 + 243 - 27। अब यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर है उनको एक साथ ऐड कर देंगे, पॉजिटिव नंबर को एक साथ ऐड कर देंगे। तो पॉजिटिव नंबर में 81 + 9 + 243 हमारा हो जाएगा कितना? 333, माइनस नेगेटिव नंबर 27 और 1 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 81। सो आवर फाइनल आंसर कितना आ जाएगा हमारा? दैट इज़ कम्स 333 - 28, तो ये आ जाएगा हमारा 305 एंड डिनोमिनेटर में 81। सो दैट इज़ इक्वल्स, सो फाइनल आंसर कम्स हेयर 305 डिवाइडेड बाई 81। ये मैं फाइनल आंसर ऊपर लिख दे रही हूँ, यहाँ पर स्पेस कम है। 81। So final answer therefore it is equals to 300, that is equals to 305 by 81. So this is the final answer. See, in this first question, can we write this as a to the power 5 b to the power 2 divided by a to the power 2 b to the power -3. In this question what we do, we send this a to the power 2 also in numerator and b to the power -3 also in numerator. So we can write this as, base same है, a to the power 5 a to the power 2 a, so power will be subtracted, into b to the power 2 -3. We can write like this. So a to the power, यहाँ पे 5 - 2 means 3 हो जाएगा, into b to the power 2 minus into minus plus 3. So that is equals to a to the power 3 and b to the power 5. This is the final answer. See the next question. In this question, how we can solve this? We can write this as 15 y to the power 8 divided by 3 y to the power 3. So 3 5s are 15. So this we can write as 5 y to the power 8. Now we send this y to the power 3 in numerator. So this will go like this. So 5 y to the power 8 minus 3 means y to the power 5. So this is the final answer. In this question given here, again in division form, so we can write this as x to the power 10 y to the power 6 divided by x to the power 3 y to the power -2. Now this we can write as x to the power 10, send this in numerator, this also in numerator, so -3 into y to the power 6 -2. So this we can write as x to the power 10 minus 3 7 into y to the power 6 minus into minus plus 2.
So this we can write as x to the power 7 into y to the power 6 plus 2, 8. So we can write this as final x to the power 7, y to the power 8. So this is the final answer. See, in this question given here again in division form, so we can write this as, so 5 3s are 15. We can write this as z to the power 16. Send this in numerator. So this we can write as, and denominator 3. So this we can write as z to the power 16 minus into minus plus 11 by 3. So z to the power 16 plus 11, this we can write as z to the power 27 and divided by 3. So this is the final answer. See, in this question 36x square whole power 1 by 2. So this power 1 by 2 is power for 36 also and x square also. So we can write this as 36 to the power 1 by 2 into x square whole power 1 by 2. Now this 36 we can write as 6 square, okay, whole power 1 by 2 into x to the power 2 into 1 by 2. Now when we multiply this power, what we can write? So 6 to the power 2 into minus 1 by 2. So 2 cancel. Into x to the power 2 and 2 cancel. So we can write here 1. So this we can write as 6 to the power minus, no, not minus 1. 1 by 2 into 1 by 2 here. No? So this cancel. So here left 1 by 2 cancel. So here left 6 to the power 1 into x to the power 1. So this we can write as 6 into x, 6x. So this is the final answer. In the same way, here also 125x to the power minus 3. This 125x to the power minus 3 both are in multiplication form and whole power 1 by 3. तो ये power 1 by 3 125 का भी power होगा और x to the power minus 3 का भी. So we can write this as 125 whole power 1 by 3, not minus, 1 by 3 only written, into x to the power minus 3 whole power 1 by 3. This we can convert in power form. So 5 to the power 3 whole power 1 by 3 into, this is in whole power 1 by 3 into x to the power minus 3 into 1 by 3. So 3 cancel. In this 5 to the power 3 into 1 by 3. So this 3 cancel into x to the power minus 1 left here, and here left 5 to the power 1 into 1 upon x. When we send this in denominator, this will positive. So 5 by x is the final answer. Now see the next question. See, here given 2x square y to the power minus 3 whole power minus 2. So this power minus 2 is power for each term inside the bracket. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power minus 2 into x square whole power minus 2 into y to the power minus 3 whole power minus 2. Now we can convert this into positive form. So 2 to the power 2 into, यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इंटू, यहाँ पे भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6. इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू, इसको भी पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में सेंड कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर, एंड हेयर y टू द पावर 6. इन न्यूमरेटर 1 इंटू 1 1 इंटू y टू द पावर 4 y टू द पावर 6 y टू द पावर 6. तो इसको लिख सकते हैं y टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 4x to the power 4. So this is the final answer. The same answer you can write in this way also, that 1 by 4 y to the power 6. If you want to send this in numerator, you can write like this also. So this also correct. Either you write this or this. Both are correct.
in this question given here 27x to the power minus 3 y to the power 6 whole power 2 by 3. So this power 2 by 3 is power for each term. So can we write this as 27 to the power 2 by 3 into x to the power minus 3 whole power 2 by 3 into y to the power 6 whole power 2 by 3. So this we can write as 27. Now we convert this into power form. So 3 to the power 3 whole power 2 by 3 into x to the power whole power, so power multiplied, into y to the power 6 into 2 by 3. So 3 cancel, 3 2s are 6. Again here also power multiplied, so 3 to the power 3 into 2 by 3. This cancel, into x to the power minus 2 into y to the power 2 2s are 4. So here left 3 to the power 2 into x to the power minus 2 into y to the power 4. Now we can write this as 3 3s are 9. This x to the power minus 2 we send this in denominator to change in positive form, and here y to the power 4. So either we can write in this way, or the same answer we can write like this also, y to the power 4, or arrange like this, x to the power minus 2 y to the power 4. So both correct, either this or this. See, in this question power 6 is power for each term, so we can write this as minus 2 to the power 6 into x to the power 2 by 3 whole power 6 into y to the power minus 3 by 2 whole power 6. This we can write as 2 to the power 6. When we multiply minus 2 6 times, what we get? 64. And when we multiply this minus sign 6 times, then we get plus. So in this way we can write into x to the power 2 by 3 into 6 into y to the power minus 3 by 2 into 6. So 3 2s are 6, here 2 3s are 6. So this we can write as 64 x to the power 2 2s are 4 into y to the power minus into minus plus minus sign, minus 3 into plus 3, that is 9. So this we can write as 64 x to the power 4 y to the power minus 9. So this is the final